Okay, so let's continue. Yesterday I told you a for loop. Okay, so let's continue the for loop. File new project. So file new project for prime number dot c for prime dot c. ठीक है. So here enter n and I and 1. Here the variable is called as flag. Normally in C programming we use the word flag. Okay, so what is this flag? I will explain. Just wait for a second. Okay. So in a for loop, yesterday I told you the program of 1 to 10. Second was 10 to 1. Third one is table of the number. Fourth one is factor. Fifth one is factorial. Sixth one is prime number. These are the important programs. That's why I'm repeating again and again. Okay, prime number, perfect number. Then next is the power. Ninth one is Fibonacci series, and 10th one is first 10 even number and sum of even numbers. Okay, so these are the things we have to complete, right? So out of this, you know this example, second example, third example. Then I told you yesterday factor and factorial. So I hope this is clear, right? If I miss any of the program, please tell me. Okay, यहाँ तक हो गया ना हम लोगों का? Please reply, everyone. Okay, if I miss any program, please inform me. Okay, so let's go to this example. Prime number, then perfect number, power, Fibonacci. So we'll complete this today. And then after this, we have nested for loop. And after nested for loop, we have do while loop. We have a do while loop. ठीक है, तो चलो पहले हम लोग प्राइम नंबर का प्रोग्राम एक बार देख लेते हैं. तो प्रिंटर enter any number, scanf %b ampersand n. Then use for loop here. Okay, so listen here. For I is equal to 2, I less than or equal to n by 2 and I plus plus. If n mod by I equal to अगर 0 है, so you can do one thing, flag is equal to 0 and break the loop. So listen, what happened here? सबसे पहले I is 2, if your number is suppose a 9, I is 2, 2 less than है क्या 9 by 2 से, मतलब क्या होगा यहाँ पे I is equal to 2, 2 less than है क्या 9 by 2 मतलब 4 से, yes. So 9 mod by 2 is 0, no. n is 9 and I is 2. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 9 mod by 2 equal to 0, no. तो इसको skip करो, I plus plus, I becomes 3. 3 is less than 4, yes. 9 mod by 3 is 0, yes. Condition is true. तो flag is 0 and break the loop. ब्रेक क्या करता है कि I अभी मेरा 3 था ना, तो ब्रेक ने प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर दिया. तो योर प्रोग्राम इज स्टॉप हियर ओनली, राइट? तो इसका मतलब फ्लैग का वैल्यू हो गया 0. तो इफ फ्लैग अगर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हुआ अगर फ्लैग 1 है तो यू कैन से दैट गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर. बट अगर फ्लैग का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब एटलीस्ट एक किसी नंबर ने 0 से लेके n तक किसी ना किसी नंबर ने n को डिवाइड कर दिया.
तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कंप्लीट डिवीजन। तो फ्लैग को हमने 0 कर दिया। अगर फ्लैग 0 हो गया तो हम लोग यहाँ पे मैसेज लिखेंगे प्रिंटफ के अंदर, गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, गिवन नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर for prime.c. Check the output, compile the code and run this code. Okay, so here is a 9, given number is not prime number. Now अभी जिन लोगों ने while loop का प्रोग्राम यूज किया है, please remember this logics. I have already completed this program in a while loop, so I will tell you the same program in while loop also, don't worry, but please remember the logic. अगर यहाँ पे डिवाइड हो गया तो I रिमाइंडर इज 0, फ्लैग इज 0, ब्रेक द लूप। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो देखो नेक्स्ट नंबर इज सपोज 5 या टेक एग्जांपल 11, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 लेस देन 11/2 मतलब 5 तक आएगा ये। तो 5 को सॉरी 11 को 2 मॉड कर रहा है क्या? नहीं, आई बिकम्स 3। 11 को 3 मॉड कर रहा है क्या? नहीं, आई बिकम्स 4। 11 को 4 मॉड कर रहा है क्या? नहीं, ओके, हाँ, देन आई बिकम्स 5। 11 को 5 मॉड कर रहा है क्या? नो, ओके, सो आई बिकम a 6। 6 इज नॉट लेस देन 5, स्टॉप द लूप। तो इसका मतलब हम लोग कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं। फ्लैग का वैल्यू क्या है बताओ, टेल मी। अगर कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैग, टेल मी। जर कंडिशन ट्रू नसेल तर फ्लॅगची व्हॅल्यू काय आहे सांगा. इफ कंडिशन इज नॉट ट्रू, then what is the value of flag? 1. That's right. That's right. That's right. Okay. Okay. So n mod by ये हुआ ही नहीं ना कंडीशन 2, तो फ्लैग इज 1, लूप इज कंप्लीटेड, फ्लैग 1 है तो गिवन नंबर इज प्राइम नंबर, दैट्स इट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, प्लीज रिप्लाई। देखो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया था, जैसे कि 15 ले लिया। आई को 2 से स्टार्ट करो, 2 लेस देन है क्या 15/2 मतलब क्या 7, ठीक है। तो 2 लेस देन है क्या, यस यू कैन टेक एनी वेरिएबल। अगर तुम लोग को x लेना है तो x वेरिएबल ले लिया सपोज, ठीक है। तो 2 लेस देन है क्या 7 से है। तो मुझे बताओ 15 को 2 मॉड करेगा क्या, टेल मी। नहीं करेगा, है ना। i प्लस प्लस आई बिकम 3, तो 15 को 3 मॉड करेगा क्या, यस। 15 मॉड बाई 3 0, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और ब्रेक, स्टॉप द लूप। क्योंकि हमें समझ में आ गया कि 15 को 3 ने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर x 0 हो गया तो लूप को ब्रेक करो। अगर x इज 1 है क्या, नहीं है, तो यू कैन से गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। यस रेणुका, एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग में देयर इज नो बुलियन वेरिएबल, बुलियन। Actually in C++ and in Python we have a boolean data type. Boolean का मतलब होता है true और false। तो ये वाला कंसेप्ट सी प्रोग्रामिंग में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे फ्लैग लेना पड़ता है। तो फ्लैग इज वन स्टैंडर्ड वेरिएबल, दैट्स राइट। तो फ्लैग अगर नहीं यूज करना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यू कैन यूज सिंपल एनी वेरिएबल एक्स आल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सगळ्यांना कळलं का? एवरीबडी अंडरस्टूड? Sonakshi, now you understood this? Sonakshi. Okay. So you can use another logic also. Suppose save as prime2.c। अगर हमने ब्रेक नहीं किया ना तो हम एक काम कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1, इसको स्टार्ट करेंगे 1 से लेके इक्वल टू तक। तो अगर x का काउंट 2 है तो नंबर इज प्राइम नंबर, अदरवाइज गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक? टेल मी, ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? प्लीज रिप्लाई। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या सबको? टेल मी। कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? क्या हुआ यहाँ पे? कृतिका, यू आर राइट कि ये इजी है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है कृतिका। अगर तुमने यहाँ पे 100 ले लिया ना तो लूप कितनी बार घूमेगा? देखो 100 टाइम्स घूमेगा। पर यहाँ पे अगर पहले वाले लॉजिक से गए होते ना तो लूप 2 ही बार घूमता, क्योंकि वो एक ही बार घूमता, क्योंकि 2 मॉड 500 जीरो आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो एक बात याद रखो सब लोग, कि तुम लोगों को प्रोग्राम इजी है इसलिए नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेक्स्ट सेमेस्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द सी प्रोग्रामिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है? तो आफ्टर कंप्लीटिंग द सी प्रोग्रामिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को टाइम लगता है, तो बिफोर सेकेंड सेमेस्टर इसको स्टार्ट करो, तभी वो इजी होगा। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये प्रोग्राम का कोड कितना 25 लाइन का है, तो डेटा स्ट्रक्चर का एक एक प्रोग्राम कम से कम मोर देन 50 60 70 लाइन का होगा। रिमेंबर दिस, ओके? और डेटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है, इन एवरी गुड कंपनी इट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर द इंटरव्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द इंटरव्यू। तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग का बेस अच्छा होना चाहिए। तो व्हाट आई सेड कि यहाँ पे अगर ये लूप 2 बार ही, मतलब अगर यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, क्योंकि एक बार 1 ने डिवाइड किया और सेकेंड टाइम उस नंबर खुद ने डिवाइड किया, नंबर इटसेल्फ। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे सपोज 6 ले लिया, ठीक है, एग्जांपल 6, तो 1 लेस देन 6 है, यस। 6 मॉड बाय 1 इज 0, यस। तो फर्स्ट टाइम ये होगा 1, फिर 2 हो गया, ठीक है, तो 2 मॉड कर रहा है, यस, ये हो गया 2। तो 3 हो गया, यस, ये 3 भी मॉड कर रहा है, ये 3 हो गया। 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 4 हो गया। तो x का वैल्यू 2 है क्या? नहीं है। इसका मतलब इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ओके? अगर तुमने 7 लिया होता, सपोज अगर 7 ले लो, तो 7 के लिए 1 के लिए एक बार घूमेगा तो 1 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 के लिए नहीं होगा, फाइनली वो 7 हो जाएगा। आई बिकम 7। यहाँ पे n इज व्हाट? n इज कितना है याद रखो? n इज व्हाट? n इज 7, सॉरी। तो 7 के लिए 7 मॉड बाय 7 इज 0, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ओनली 2 टाइम्स, एक बार 1 के लिए और सेकेंड टाइम उस नंबर के लिए। अगर 2 बार ये डिवाइड होता है तो यू कैन से दैट इट्स अ प्राइम नंबर। हाँ। एंड 15 मॉड बाय, चलो 7 मॉड बाय 1 इज व्हाट? टेल मी। 7 मॉड बाय 1 इज 0, बराबर है ना आदित्य? एंड सेकेंड टाइम 1 एंड सेकेंड टाइम 7 mod by 7 is also 0। तो इसका मतलब ये लूप 2 बार घूमेगा। दैट्स राइट सुप्रदा, x इज एक्टिंग लाइक अ काउंटर हियर, करेक्ट है। अगर ये काउंटर 2 हो गया तो इसका मतलब वो 2 बार डिवाइड हुआ, एक बार वो 1 से और सेकेंड टाइम खुद नंबर से। अंडरस्टूड? अगर काउंटर 2 होता है तो इसका मतलब ये 2 बार डिवाइड हुआ, एक बार 1 से और सेकेंड टाइम वो नंबर जो होगा उससे। So try for the different logic for one program. Okay, let's go to the next program. Let's go to the next program. Perfect number. Perfect number dot c। तो इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट नंबर मतलब कि तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर ले लिया। नंबर अगर मैंने ले लिया सपोज 28, ठीक है। फॉर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम 1, I less than or equal to n by 2 I plus plus। if n mod by I equal to अगर 0 है तो I need a sum here। sum चाहिए हम लोग को यहाँ पे, which is 0 right now। sum is equal to sum plus I।
ओके, इसका मतलब क्या होता है देखो, अगर हमने एक 28 नंबर ले लिया तो 28 का फैक्टर कौन है, i इज 1, 1 लेस देन है 14 से, यस, i इज इक्वल टू 1, 1 इज अ लेस देन और इक्वल टू 14, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे कि 28 को मॉड किया 1 ने, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, यस, तो ये क्या कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, i बिकम्स 2, 2 लेस देन है 14 से, यस, 28 मॉड बाई 2 इज 0, यस, तो रिमाइंडर 0 आ गया, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, i becomes 3 here, 3 less than 14, so 28 mod by 3 is 0, no, so skip this code, I becomes 4, 4 less than 14, 28 mod by 4 is 0, yes, so 3 plus 4 equal to 7, I becomes 5 here, 5 is less than 14, yes, 5 mod by 28 mod by 5 is 0, no, I becomes 6, 6 less than 14, okay, 28 mod by 6 is 0, no, I becomes 7, okay, 28 mod by 7 is 0, yes, add that, 7 plus 7 equal to 14, become 8 now, 8 less than 0, 14, yes, but 8 mod, 28 mod by 8 is 0, no, 9, no, 10, no, 11, no, 12, no, 13, no, 14, yes, 14, yes, तो यहाँ पे होगा 14 plus 14 equal to 28, ये हो गया 15 now, 15 less than है 14 से, no, condition is false, come out of the loop, condition is false, come out of the loop, if your number equal to sum, कि तुमने जो नंबर दिया वो और सम अगर सेम है तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग, गिवन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, गिवन नंबर मतलब कौन था, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, परसेंट बी इज अ परफेक्ट नंबर, परसेंट बी इज अ परफेक्ट नंबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंटफ परसेंट बी इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, कॉमा n, तो जो नंबर तुमने दिया उसका फैक्टर्स का अगर सम कैलकुलेट किया, वो सम और तुम्हारा नंबर सेम है तो इट्स अ परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट नंबर, compile a code and run this code here, 28 is the perfect number, check the another example, 29 not a perfect number, understood everybody, please reply, म्हणजे त्याचे फॅक्टर्स काढायचे, त्याच्या फॅक्टरची सम करायची, ती सम आणि नंबर जर सेम असेल तर परफेक्ट नंबर, find out the factor of that number, okay, if the factors and the sum is the same, number is same, so it's a perfect number, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, मीन्स फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, अगर वो सम एंड नंबर इज सेम तो यू कैन से इट्स अ परफेक्ट नंबर, हाँ, go to next example, power of the number, Fibonacci series and this one, base and power and answer, the I also, enter the base and power, percent D, ampersand B, ampersand T, तो फॉर लूप यूज करेंगे, तो पहले पेपर पे वर्क करो, पेपर वर्क मतलब क्या करोगे, सपोज बी अगर है हमारे पास इक्वल टू 2 एंड पी
इज इक्वल टू 3, इसका मतलब आंसर इज इक्वल टू आंसर, आंसर मेरे पास इनिशियली 1 होगा ये, तो आंसर मतलब 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर हो गया। फिर से एक बार 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। लूप इज कंप्लीटेड बिकॉज जहां तक पावर है वहां तक मल्टीप्लीकेशन करना है। क्लियर? दिस इज क्लियर। जहां तक पावर है उतनी बार लूप घूमना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें कंडीशन समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द कंडीशन। कंडीशन क्या होगा कि मेरा जो पावर है उतनी बार लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट? जो कुछ पावर है वहां तक मेरा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू पावर i प्लस प्लस, ओके, एंड हियर आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू बेस। मतलब i1 होगा तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2, तो आंसर आएगा 2। i2 हो जाएगा तो प्रीवियस आंसर इंटू 2, 2 इंटू 2 आंसर हो जाएगा 4। i3 हो गया तो 4 इंटू 2, आंसर इज 4 इंटू 2 बन गया 8। I become 3, 3 less than नहीं है, sorry, I become 4, 4 is not less than 3, stop the loop, your answer is 8. You can print here for the base percent d power percent d is equal to percent d, so comma b comma e comma answer, okay. This is clear everyone? For base 2 power 3 equal to 8. Yesterday I told you one homework. Do you remember that? कल मैंने कुछ होमवर्क बोला था, डू यू रिमेम्बर? बरोबर है। So how many of you completed this one? So just want to understand, आतापर्यंतचे प्रोग्राम कोणी कोणी लिहिलेत नोटबुक मध्ये? कुठपर्यंत ऍटलीस्ट? वाईल लूप पर्यंत. प्लीज रिप्लाय. ओके, चलो. Okay, everybody listen, there is one question. Okay, last time Suprata has shared that question and now Sahil is asking the same question. Okay, so what they are asking, suppose base is 2, okay, and power is -3, so they need an answer. So today is a challenge for all of you. Let's see how many of you are able to solve this. Okay, and accept this type of challenges and solve this. Definitely your confidence will increase. Base is 2 and power is 3, so they want the answer. What if the power is in the negative number? चालेल का? सॉल्व करणार का सगळेजण? This is one small challenge for you. कि base is 2 and power is -3. So let's try कि how many of you are able to find out the solution for this program. And tomorrow you have to explain this. If anybody got the output, I know tomorrow at least those who will find the search properly, so at least 10 people will get the answer for this question. This is my confidence. Okay, at least 10 people will get the answer for this question. Okay, ठीक है. Even हम लोग इसके बाद there are different type of patterns also I am going to tell you. Even you tried like very good. Chinmay had shared very good output. Even 2-3 people had shared some program. So guys, mostly share the program on like share the program on a group. Suprata, it is not about to Google वर लगेच मिळेल वगैरह. That is not an issue. ठीक है. The point is that you should know, you should have to see. You can copy from anywhere, but ultimately you should able to understand the logic. That is the important point. When you are learning, you can learn from anywhere. That is not an issue. Ultimately, you got some problem statement, you find out the solution for that. But first try on your own. First thing is that you should try on your own. If you are not able to get the answer, then you can search on other resources. And based on that, you will develop your logics actually. ठीक है?
Okay, that's fine, no problem. You can search on Google, not an issue. But before that, first try on your own. Will definitely appreciate everybody. अगर तुम लोगों ने खुद अगर ढूंढा तो इट्स रियली गुड. अगर नहीं मिल रहा है तो वर्स्ट केस यू कैन गो फॉर गूगल, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम. लेट्स गो टू नेक्स्ट प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम फॉर लूप fibo डॉट सी. So that is called as a debugging. That is called as a debugging, Suprada. Okay, suppose for example, if I by mistake suppose I like mention the number is 3. ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल करूंगा. ठीक है, कंपाइल द कोड एंड देन रन द कोड. अभी हम लोग को मालूम है कि वहां पे 3 लिखा है हम लोगों ने, बट चेक एग्जांपल कि मैंने बोला 2 raised to 4, बट अरे व्हाई आंसर इज कमिंग 8, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो अभी मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे 3 लिखा, इसलिए तुम लोग बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे 3 लिखा. बट व्हेन यू राइट बाय मिस्टेक तब इतना इजी नहीं होता है ये आंसर ढूंढना. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, टेक द पेंसिल, आई 1 है, ठीक है, 1 लेस देन है 3 से, ओके. तो फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे घुमा, आई बिकम्स 2, सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया. अरे मैंने तो यहाँ पे पावर 4 लिखा था. ओके, तो ये 3 बार घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है. अंडरस्टूड. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है, हाउ टू फाइंड आउट द बग, दैट इज रन टाइम एरर. हाउ टू फाइंड आउट द रन टाइम एरर. नाउ कंपाइल टाइम एरर इज नॉट अ बिग डील. कंपाइल टाइम एरर इज नॉट अ बिग डील. तुम लोग भी देखो कि तुम्हें भी कंपाइल टाइम एरर इमीडिएटली मिल रहा होगा, है ना. यू कैन एबल टू फाइंड आउट द कंपाइल टाइम एरर इजीली, एम आई राइट. प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, रन टाइम एरर में. तो रन टाइम एरर को जो सॉल्व करेगा उसका लॉजिक ऑटोमेटिकली डेवलप होगा. लिसन, क्या मैं बोला मैंने कि हम लोग अगर लास्ट ईयर के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे एक स्टेटमेंट होता है, सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कोडिंग चैलेंजेस. इवन तुम्हारे एग्जाम भी होते हैं जिसमें आउटपुट रॉन्ग दिया जाता है, तो तुम्हें पहले डीबगिंग करके आना चाहिए. अरे करेक्ट आउटपुट क्या है. अगर तुम्हें करेक्ट आउटपुट समझ में आएगा तभी तुम बता पाओगे ना एमसीक्यू में कि करेक्ट आंसर कौन सा है या रॉन्ग आंसर कौन सा है. अंडरस्टूड. तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डीबगिंग टेक्निक की, इसलिए एमसीक्यू एग्जाम होता है. एवरीवन क्लियर? ओके, so let's go to the next program, that is the Fibonacci series. तो फॉर लूप के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट में मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम के पहले बताया था बहुत लोगों को, और ये एग्जाम में आया भी था शायद से. आई यहाँ पे सेमी कॉलन सेमी कॉलन, अगर ये लिखोगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा मालूम है. कैन यू टेल मी व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा बोलो. दैट्स राइट, इंफिनिटी. कंपाइल द कोड, ये देखो, क्लियर. व्हाट इज आउटपुट हियर, दिस कॉल्ड एज इंफिनिटी. ओके, चलो इसका आउटपुट बताओ. टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम नाउ. कंपाइलेशन एरर, इंफिनिटी. अरे नो 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 नो, नॉट 1 स्टार, अगेन इंफिनिटी. नो, अगेन इंफिनिटी. इंफिनिटी सुनो, मतलब क्यों, देर इज नो कंडीशन एंड नो इंक्रीमेंट, तो इनफाइनाइट लूप में चला गया ये. अंडरस्टूड. दिस इज इंफिनिटी अगेन, प्लीज रिमेंबर. बिकॉज बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं है, कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गया, इंक्रीमेंट नहीं है, सो दिस इज इंफिनिटी. ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम लोगों को लास्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर. आई लेस देन और इक्वल टू 10, और यहाँ पे लिखा था हमने आई प्लस प्लस. इसका आंसर क्या आएगा बोलो. इसका आंसर क्या आएगा, टेल मी.
नाउ टेल मी द आंसर। रुको और एक बार। हाँ, अभी आंसर बताओ क्या है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम। वेरी गुड प्रणव, एक्सेलेंट। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। ओनली वन आंसर इज करेक्ट। प्रणव, योर आंसर इज करेक्ट। क्योंकि देखो क्या हुआ यहाँ पे, आई विल एक्सप्लेन। नो दैट्स रॉन्ग। चिन्मयी, सोनाक्षी, सेजल, ओके, प्रणव ने दिया वो आंसर आएगा। देखो, अरे यहाँ पे डी क्यों आ गया? डी परसेंट सी किया था मैंने, एक सेकेंड। बट ये सही है, एक मिनट बताता हूँ मैं। हेलो आ गया, स्टार आ गया, डी डी क्यों आ गया? अच्छा, परसेंट बाकी है। हाँ, 11 दैट्स राइट। तो ऐसे क्यों हुआ सुनो, इसके पीछे रीजन क्या था। ये यहाँ पे देखो, आई क्या है? 1 है। हाँ, तो 1 इज लेस देन 10। हेलो प्रिंट हो गया पहले, ठीक है। स्टार प्रिंट हो गया। देन यहाँ पे आए, नहीं सॉरी, तो 1 <10 से, बट यहाँ पे सेमी कॉलन है। तो सेमी कॉलन का मतलब ये लूप यहीं पे खत्म हो गया। इस लूप का और इस वाले कोड का कुछ भी रिलेशन नहीं है। ये दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं है। अभी इससे क्या होता है, 1 <10 गो दिस बिकम 11, 11 सॉरी बिकम अ 2, 2 <10 becomes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फाइनली ये हो गया 11। 11 इज लेस देन 10। 11 इज लेस देन 10। 11 इज लेस देन 10। नो, ठीक है। 11 इज लेस देन 10, नो। तो इसके वजह से क्या होगा, लूप अभी खत्म हो गया। तो ये हेलो प्रिंट करेगा, फिर ये स्टार प्रिंट करेगा, फिर ये 11 प्रिंट करेगा और ये 11 प्रिंट करेगा। सो द आंसर इज हेलो स्टार 11 11। अंडरस्टूड एवरीबडी? प्लीज रिप्लाई। तो बिकॉज ऑफ सेमी कोलन ये लूप यहीं पे खत्म हो गया। तो इस लूप का और इस ब्लॉक का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वाइल में एरर आएगा, बिकॉज वाइल में सेमी कोलन इज नॉट अलाउड। सोनाक्षी, इन वाइल लूप यू विल गेट एरर। वाइल लूप में एरर आएगा, उसमें सेमीकोलन इज नॉट अलाउड। ठीक है। ओके, इसके बाद एवरेज फॉर आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे j इज इक्वल टू 1, j प्लस प्लस आई इज इक्वल टू प्लस j एंड प्लस प्लस j। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। तो इंटर परसेंट b स्लैश t परसेंट d कॉमा i कॉमा j
टेल मी द आंसर नाउ। ओके चलो, नाउ आई विल एक्सप्लेन, लिसन। सबसे पहले क्या होगा, इसको कॉपी करो, इसको आउटपुट चेक कर लो एक बार। Instead of remembering the previous lecture, okay, just focus on this lecture now. Okay, don't worry. Okay, so because same thing I am telling you right now. So 1 1 and 3 3. What is the answer here? 1 1 and 3 3. So why this happen here? Listen. Copy this code. Yes, I know that some people has missed the lecture at that time, but ignore, guys. Listen. So okay, ठीक है, वो important नहीं, अभी याद रखो, but यहाँ पे सुप्रदा, now listen, I'm okay, repeating the same thing, don't worry, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, I is 1, J is 1, so 1 is a less than equal to 6, तो यहाँ पे ये दोनों प्रिंट होंगे 1 और 1, आई ये है और ये जे है। तो यहाँ से हम जब जाएंगे, तब मैंने ये बताया था उस टाइम पे कि तुम बताओ मुझे, पहले ये वाला पार्ट होगा या ये वाला होगा, जे प्लस प्लस होगा या जे प्लस 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 जे होगा, कौन सा कोड पहले एग्जीक्यूट होगा? टेल मी, शुड आई एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक और शुड आई एग्जीक्यूट जे प्लस प्लस? टेल मी, करेक्ट है? नो, पहले कौन होगा? चलो हम एक काम करते, इसको चेक करते हैं, पहले इसको चेक करो, ठीक है? पहले इसको चेक करते हैं। j becomes 2, I is already 1, 1 plus 2, I becomes 3, और ये j हो गया यहाँ पे, j हो गया यहाँ पे कितना? 3, याद रखो j हो गया 3। अगर हम आउटपुट देखेंगे तो हमें आउटपुट में क्या आ गया? I आ गया, ओके, I is 3, रिमेंबर दिस, I is what? 3, 3 लेस देन 6, यस, तो ये प्रिंट होगा 3 और जे भी प्रिंट होगा 3। फिर से एक बार हम लोग ऊपर चले गए, यहाँ पे जे हो गया 4, सो आई 3 था, 3 प्लस 4 बिकम 7, आई हो गया 7 एंड ये हो गया कितना? 5। बट प्रॉब्लम इज दैट 7 इज नॉट लेस देन 6, सो द आंसर इज 1 1 एंड 3 3। तो इसका मतलब पहले ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आई विल चेंज द कलर हियर। सबसे पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्टूड? सबसे पहले ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, because comma operator work from this side to this side, remember? तो पहले ये वाला काम होगा, इधर वाला, फिर ये वाला होगा। तो क्या किया हमने? सुनो, आई विल रिपीट दिस। इनुका लिसन, I1 है, J1 है, 1 लेस देन 6, हम अंदर आ गए, 1 1 प्रिंट हो जाएगा पहले, IB1 JB1, ठीक है? हेलो, ये दोनों आएंगे 1 1, राइट? both are 1 1। after this go to this block here, j plus plus, ये हो गया 2, ये हो गया 2, और ये होगा 1 प्लस 2 मतलब 3, ओके, और ये भी हो गया 3, याद रखो, बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों प्रिंट, I3 है तो 3 लेस देन है 6 है, यस, तो ये प्रिंट होगा 3 और 3। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, j बिकम्स
4, आई पहले 3 था, 3 + 4 बिकम 7। ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 7 हो गया ना ये आई, तो आई 7 हो गया तो लेस नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो दिस थिंग? टेल मी। प्लस प्लस वाला कंसेप्ट कितने लोगों को मालूम नहीं है? एक्स प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस, ये how many of you don't know this operator? Tell me. The operator name is increment and decrement. Yeah, that's right. सही मैडम, that's right. But how many of you don't know this? I'm asking कि कितने लोगों ने ये लेक्चर नहीं किया अभी तक? Tell me. Because Dhanashree said ना कि what is the difference? Okay, और कौन है बताओ? और कोई है क्या जिन्होंने ये लेक्चर को नहीं अटेंड किया? उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर मतलब बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। तो रेणुका, ये होता है सेमीकोलन, इसका मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट। कॉमा क्या काम करता है? ओनली जस्ट डिवाइडिंग द टू एक्सप्रेशंस और वैल्यूज। ये लाइन को एंड करता है सेमीकोलन, ये सिर्फ एक्सप्रेशन को अलग अलग करता है, दो इक्वेशन को अलग करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा, ये एंड करता है स्टेटमेंट को, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, रेणुका, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। ओके, I will inform you now in another batch. I'm taking this operator, so you can join that also. ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे फिलहाल? So one more question for today. X is equal to 0, y is equal to 1, z is equal to x plus plus and plus plus y. Tell me the answer. Z कितना आएगा, x क्या आएगा और y क्या आएगा? Tell me. 0, 1, 1, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अभी ऐसे क्यों? टेल मी व्हाई दिस आंसर, क्योंकि ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू का मतलब होता है 1, ओके, एंड फॉल्स का मतलब होता है 0। तो यहाँ पे एक 0 है और एक ट्रू है। एंड ने क्या बोला? अगर एक फॉल्स है तो मुझे समझ में आ गया कि आंसर फॉल्स आने वाला है, तो इसलिए उसने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया। सुनो, जो लोग y को 2 बोल रहे हैं ना, उनको बता रहा हूं मैं, तो ये यहीं पे स्टॉप हो गया। हाँ, लिसन, आई एम टेलिंग यू, लिसन, ये यहीं पे स्टॉप हो गया सपोज, ठीक है। तो एक एग्जांपल लो, ये तुम्हारा सपोज क्या है, क्लास है एग्जांपल ना, एंड दिस इज योर हॉस्टल और होम, ठीक है। इमेजिन करो अगर तुम लोगों को इस साल कॉलेज को अगर मिल गया परमिशन आने के लिए, अगर तुम्हारा लक अच्छा होगा, ठीक है, तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे तुम्हारे कॉलेज के, ऐसे हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो तुमने पूरा प्लानिंग कर लिया कि नहीं, अभी 15 मई के बाद कॉलेज ओपन होने वाला है, ठीक है। तुमने पूरा पैकिंग वगैरह कर लिया एंड यू आर रेडी टू गो टू द कॉलेज। और सडनली, ओके, सुनो, हाँ लिसन, और उसके बाद ही 14 तारीख को आ गया कि नहीं, फिर से लॉकडाउन हो गया और तुम तो घर से निकल गए, सपोज एग्जाम्पल लो, 14 को तुम लोग निकल गए घर से तुम्हारे कार से या जो भी व्हीकल होगा, और तुम्हें समझ में आ गया, न्यूज आ गई कि नहीं लॉकडाउन फिर से हो गया। तो अभी मुझे बताओ,
कि फिर भी तुम लोग कॉलेज को चेक करने के जाओगे क्या? नहीं ओपन है क्या नहीं है, या यहीं से रिटर्न हो जाओगे? टेल मी। जहाँ हो वहीं से रिटर्न हो जाओगे, या फिर भी यू विल गो टू द कॉलेज एंड यू विल चेक द थिंग्स? टेल मी। बराबर है, तो यहीं से यू टर्न हो जाएगा ना। करेक्ट ही नहीं? नहीं तो किसी को अगर डाउट आएगा, नहीं नहीं मुझे जाना ही चेक करना है सच में तो कॉलेज बंद है क्या नहीं, अगर करना होगा तो यू कैन गो टू कॉलेज, राइट? बट द थिंग इज दैट यहीं पे यू टर्न हो जाएगा। वैसे ही होता है कि इसको समझ में आ गया कि एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसका मतलब आंसर फॉल्स आने वाला है। तो व्हाई शुड आई गो टू माय कॉलेज टू चेक द कॉलेज इज ओपन और नॉट? अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी ये सेशन बंद हो जाएगा, बट फिर भी एक सेकेंड में दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं। वन मिनट। एक्स इज इक्वल टू 0। ओके एंड बट तुम्हारा होमवर्क क्या है? ये सारे प्रोग्राम आज 2 times यूजिंग फॉर लूप इन योर नोटबुक। ऑल दिस प्रोग्राम 2 times यूजिंग फॉर लूप इन योर नोटबुक। बट सबसे पहले करके देखना है प्रोग्राम्स को। हाँ, एक मिनट, ये 0 था और ये 1 था। हमने क्या लिखा? इंटीजर z इज इक्वल टू आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस प्लस वाई सपोज। printf स्लैश n परसेंट डी आई स्लैश n परसेंट डी जे और z परसेंट डी जेड। कंपाइल एंड रन। ये देखो 0 1 1, लुक एट दिस। 0 and 1 1, वाई का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टूड सेजल? और जिन लोगों ने आंसर दिया था 2, लिसन। ओके, जो जेड जे है ना उसका आंसर 1 ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ तक गए नहीं, क्योंकि कॉलेज बंद है तो यहीं से यूटर्न हो गए। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी था 1 और ये था 0, यहाँ तक गए थे इसलिए ये इंक्रीमेंट हो गया। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट एवरीबडी? चलो, now this session is over here, so we'll continue tomorrow same time with two nested for loop, different type of patterns using for loop. Okay, chalo, thank you, we'll continue tomorrow. Yes, yes, message me, I will send. Yeah.